So, good evening, ladies and gentlemen. This is Akanksha Tyagi, and before I start anything else, I would like to read a prayer for all of you. So, this prayer is somewhat like this: May every trouble be kept at bay. May in your life happiness, prosperity only have their say. May the compliances be met ongoingly. May consultations happen timely. May litigations be resolved at quickest speed. May slightest deviation from dharma meet our heed. May abundance reach every human being on the planet. May happiness, prosperity be the only blanket. Wishing all my friends and family and thanking the legal fraternity for their infinite service to the world. These are the last three lines. So I'm sure when I was reading this prayer, you might have some connotations going in your mind. And what is this prayer all about? So, ladies and gentlemen, today we have a very renowned legal consultant, lawyer, and the first author of the book, Rising in Love with Your In Laws. An amazing book indeed. So, we would like to welcome Ms. Savita Sinha here at our show, She Flakes, the GWC Talk Show, episode 15. Welcome, Savita ji. Thank you. It's an honor to have you here at this platform and share your journey with us. Before we move ahead in this show, I would like to know more about you. As we say, know more from the horse's mouth. So you are here, and we would like to know more about you and your career span and how it went. We would like to know more from you. Okay. Thank you, Akansha, and thank you to all our viewers. I started my career as a lawyer in 2004, having passed out from Campus Law Center, University of Delhi. Before that, I had done my political science graduation at Miranda House at Delhi University. And so it all started after I did law. I joined a women's rights activist, Advocate Kirti Singh, and it was a very great learning experience. Thereafter, I worked with the who is currently the Judge of Supreme Court of India, Honorable Justice Indu Malhotra, in the year 2005. And thereafter, in 2008, I worked at a corporate law office called Lex Counsel. It is one of India's leading corporate law firms. And then I got married and I shifted to Dubai. I was blessed to work there at an international law firm as a legal consultant. All experiences that I gathered from these many assignments. तो शुरू में लिटिगेशन था, 2 असाइनमेंट्स लिटिगेशन के और 2 असाइनमेंट्स कॉर्पोरेट के, और उसके बाद 2013 में आई स्टार्टेड ऑन माय ओन एज अ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, and I have been practicing corporate law, civil law, family law, litigation, electricity, telecommunication law, foreign exchange law, and international law. So, मतलब बहुत हल्का सा स्निपेट मेरी जर्नी के बारे में. Yes. That's amazing. That's amazing. Very inspiring. So, the first question that I always ask to my guests at this show is from where it started. Was it there when you were a child, or at some point of time you got inspired by somebody in your family or a friend, or somebody who worked as an idol for you? After following their footprints, you followed that path, or was it a different? It had a different story altogether. Yes, my parents, they wanted me to become a lawyer. Yeah, Right. since the very beginning, ये तो lawyer बनेगी. तो कभी फिर धीरे धीरे मम्मी पापा ने इम्बाइब भी कर दिया कि मेरी भी चाहत बन गई लॉ करने की. So that's how जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, so I chose political science so that I would get some hang of constitutional law and public administration में service law, administrative law आता है. और उसके बाद फिर तो वहीं से हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे नाना डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर किए थे. ही वाज इन द जुडिशियल सर्विसेज, so he was an inspiration definitely.
एंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है टू शेप मी इनटू अ लॉयर एंड स्टिल no wonder that anytime I win a case or I contribute to people's lives, I call them up and I tell them that look what you तो आपने मुझे यहाँ तक ला दिया कि अब मैं दूसरों की लाइफ में ऐसे हेल्प कर रही हूँ. I make it a point to call them and thank them. Yes. Amazing. That's amazing. So parents always play a very important role in shaping a career of their kids. और जहाँ तक सविता जी की बात है, उनके पेरेंट्स ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उनका करियर शेप करने के लिए. अब क्वेश्चन मेरा ये है, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स आपके लिए करियर सेट कर देते हैं और आपका उसमें एप्टीट्यूड नहीं होता है या इंटरेस्ट नहीं होता है, और कुछ लोग लकी होते हैं और जो काफी अच्छे करियर तक पहुंच जाते हैं. कुछ लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या किया जाए, किस करियर में जाया जाए. सो एज अ लॉयर, द kids who are interested in this field, legal field, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपना एक सेटअप या फिर रूटीन बनाना चाहिए so that they don't get distracted and they follow a regular and very directed path towards their journey of a lawyer or a legal consultant? Actually, the most important thing, even looking back also now I can say with my experience also that interest होना बहुत जरूरी है. तो इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है. वैसे मुश्किल होता है, +2 के बाद ही अब तो 5-year लॉ कोर्सेज होते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं. बट नॉट एवरीबडी, एज यू सेड दैट मेनी आर कंफ्यूज्ड आल्सो, सो नॉट एवरीबडी आर वेरी क्लियर. So I think that's okay. You can explore your options and read about law, read case laws. अब आजकल तो videos का बहुत जमाना है. Watch the videos. Do you find it interesting? Because one thing for sure is that you will have to learn a lot. You will one has to devote lot of time. वो भी लगातार 3-3, 4-4 घंटे बैठकर पढ़ना पड़ता है और पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ता है, बारीकियों को एनालाइज करना पड़ता है. तो टाइम टेकिंग लेबोरियस टास्क काफी होता है. सेटिस्फाइंग होता है डेफिनेटली. तो एज मेनी सक्सेसफुल पीपल से कि अगर इतना इम्पोर्टेंट इतना टाइम अगर आपके जीवन का आपके वर्क में ही जा रहा है, देन यू माइट एज विल वर्क ऑन समथिंग दैट यू लव. तो ठीक है, आप लव को डिसाइफर करने में टाइम लगा लो, but make sure that happens. That is very very important, because otherwise competition भी है और tough भी है, दोनों चीजें हैं. Right, absolutely. So just make up your mind कि हाँ, am I willing to do, and it's okay. I mean it's okay. आप शुरू करोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप और पढ़ोगे, किसी से करियर काउंसिल. It's okay. Live that journey and come to a point. Take your time to take a decision, and as parents we should give them time, you know. Right, absolutely. Thank you. So जो आपका टैगलाइन है वो कहता है gratitude and empathy is the key to happiness and prosperity. People use a lot of thank yous every now and then. They tend to be thankful to everything that they come across. But saying and feeling that pious feeling of gratitude that I as an individual is learning from you. So I want to know more about this, that what is the ultimate code of gratitude and empathy and its relation to happiness and prosperity? Wonderful question. See, from my personal experience, first of all, I would like to tell you, right, gratitude allows you to be non-judgmental about yourself and about the other person. Right. अगर एक पर्सनल एग्जांपल से मैं एक ऑफिस सेटअप लेती हूँ जहाँ पे हमारे सीनियर्स थे, लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट लॉ फर्म अर्लियर. तो जो मेरी ग्रास्पिंग पावर थी, बिकॉज मैं ग्रेटिट्यूड में थी, एम्पैथी में थी, वो इतनी हाई थी. इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ say July, so not even 8 months, I did work on so many assignments in that organization. Like it's huge. बहुत सारे असाइनमेंट्स मैंने उस छोटे, जबकि वो मेरा कॉर्पोरेट लॉ का फर्स्ट असाइनमेंट था,
उसके पहले मैं लिटिगेशन में थी, तो दोनों का अलग फील्ड्स होता है, नॉलेज अलग होती है, मतलब समझो मैं फ्रेशर थी, एंड Right. the speed with which I could learn and perform was tremendous. And uh, it is not only that I felt so, even my bosses used to say that. So Amazing. and Amazing. and so क्योंकि मैंने and I think it now I look back, it was as if a jigsaw puzzle, you know, joint dots join हो गए, क्योंकि जब मैं दुबई गई मैरिज के बाद, हस्बैंड की वहां पोस्टिंग थी, तो वहां पर हम लोग लिटिगेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सिर्फ वहां के सिटीजन्स के लिए होता है. We could expatriates we could only join as a legal consultant and a corporate law firm. तो मेरे को बिल्कुल वो 7 months का एक्सपीरियंस इतना काम आया. आई रिमेम्बर 2008 इट वाज अ रिसेशन पीरियड, एंड विद इन 10 days of landing in दुबई आई हैड द जॉब. Wow. सो क्योंकि स्पीड बड़ी बढ़ गई, ग्रास्पिंग इतना, इंटरव्यू क्लिक हुआ, और वहां पर भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ये बात अलग है कि पोस्टिंग तुरंत वापस इंडिया हो गई, तो इट वाज अ ब्रीफ पीरियड ऑफ अगेन अराउंड 1 year. But it was an excellent experience. I got to learn so much. I got to perform so much, and yes, it paid. It really paid. It paid at that time. You know, they gave me good salary, and realize it is paying me now. क्योंकि उस experience पर तो मैंने फिर build up किया है अपना career. As I told you, I'm into corporate as well as litigation. So it wouldn't have been possible अगर मैं एक में ही रहती. तो आज looking back मुझे लगता है that it was all as if planned. So it is gratitude. I was always in gratitude. जब मुझे डांट भी पड़ता था बॉस से, कुछ सिखाती थी तो मैं ओपन माइंड से उसको सीखती थी, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और चूंकि मैं इतनी ईगर थी लर्न करने के लिए, वो मुझ में बहुत इंटरेस्ट लेते थे छोटी छोटी बातों का. आई थिंक दैट इज वेरी फेनोमिनल. तो एक होता है कि आप छोड़ दे कि यार मुझे सिखा नहीं रहा है, राइट? और एक होता है कि आप ग्रैटिट्यूड और एम्पैथी में रहे और आप वो डिराइव करें दूसरे से, that wow, she is learning so much, let me just take care of her. It was an amazing experience. So that is very true. ये मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अलावा तो खैर बहुत सारे हैं. Right. So if I understand you correctly, gratitude opens the door of learning. Gratitude helps you to imbibe that happiness all around, that prosperity all around. So this is gratitude. ना ना ना, देखो ग्रैटिट्यूड में क्या होता है, या तो आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे या आप ईगो में रहोगे. Alright. दोनों में एक साथ नहीं रह सकती, ये दो तलवार एक साथ नहीं रह सकती. जस्ट कैच योरसेल्फ एनी मोमेंट. या तो आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, आई एम थैंकफुल टू गॉड, या तो आप ग्रीवांस में रहेंगे, यार मुझे ये नहीं दिया भगवान ने. आप बोल के देखो, मैं थैंक यू, मुझे ये नहीं दिया भगवान. You can't. Right. What happens is कि ईगो इज अ ब्लाइंडर. ईगो आपको लर्न नहीं करने देगा ना. अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे दिया क्यों नहीं, सिखाया, उसको सिखा दिया, उसको फेवर करते हैं, बायस हैं. Right. अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो आपको लगेगा कि अरे मुझे तो 5 चीजें आती थी, देखो 6ठी चीजें सिखाने में कितनी मेहनत की है, आई एम सो थैंकफुल, चलो ये करते हैं, चलो ये देखते हैं. फिर सामने वाले को आप एक्नॉलेज करोगे तो वो भी इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि अदरवाइज तो उसको सारे ग्रीवांस वाले जूनियर्स मिलते हैं. Right. Absolutely. So we have few people who have joined us. Pushpa Sahu ji, Bindu Bajaj, Shweta Rai. So these people have joined us. So I would request each one of you to share this inspiring story to as many people as you can, because through these videos we are inspiring other women. We want to create a bond of mutual connection, bond of mutual relationships, wherein we through people like Savita Sinha ji, we help other women to rise and empower themselves. So please request each one of you to share this video wherever you can. Thank you so much. Next question that I have. So I'm going to ask so many questions to you. So gratitude, this was the part all about gratitude. How about empathy? How empathy helps you to grow? How empathy helps you to imbibe that happiness and prosperity? Empathy is about relating to the other person from where he or she is speaking, or he or she is behaving, why he or she is behaving the way he is. Right? देखिए, एक fundamental principle है. Supposing somebody is angry,
यू कैन एट द मोस्ट रिलेट टू इट कि वो कितना एंग्री है, मगर उसके जो फिजिकल बॉडीली इमोशंस हो रहे हैं या सेंसेशंस हो रहे हैं उसको तो नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते ना, तो इंडिविजुअल होता है। तो ज्यादातर क्या होता है, हम लोग, कोई अगर बहुत ज्यादा सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग बंदा होगा ना, तो वो यहाँ तक पहुंच सकेगा कि हाँ ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, बट फिर भी वो गैप हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जो बेचारा परेशान हो रहा है, आपको तो दिख रहा है कि वो आप पे गुस्सा कर रहा है, बट वो जो परेशान हो रहा है वो तो खुद ही हो रहा है ना। तो एक तो ये गैप, तो ज्यादातर क्या होता है कि इस गैप में लोग समझ नहीं पाते हैं। But empathy will allow you to just understand कि okay, something is happening. Why is boss angry? There was some mistake on my part. I must take मेरी responsibility about it. And then you can cement it कि ठीक है, मैं इस पे अब काम करूंगी. How do I make it correct? Okay, instead of making him wrong. Then once you correct it, you have learned a new thing which will help you otherwise, and the boss will also appreciate you कि ठीक है, इसने गलती की, she owned up, and भाई ऐसे ही तो सीखते हैं सब लोग, right? Then boss will also, if I give empathy, the boss also gives me empathy कि भाई हमने भी ऐसी गलतियां की थी और हम यहाँ तक सेल हुए, despite that, you know, we have made a turnover of this much amount and employed so many juniors. मतलब मैं अपने प्रोफेशन से एग्जांपल दे रही हूँ आपको, right? So it empathy really allow, and then you can be, as you were saying, it really allows you to be then open to learn more, grasp more. And आप otherwise पहले क्या होता था, जब मैं actually speaking 2007 onwards मैंने काफी अप्लाई करना शुरू किया ये सब, उसके पहले नहीं करती थी, जबकि आई स्टार्टेड माय करियर इन 2004। तो पहले क्या होता था, कुछ मिस्टेक हुई या ईगो हैसल्स हुई, तो फिर डोर्स क्लोज हो जाते थे, right? One tends to, you know, either one will be rebellious or one will be subdued, right. Yeah, you know, something like that. But empathy से अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपका वो रिश्ता भी रहेगा, क्लाइंट्स भी रहेंगे, असाइनमेंट भी रहेगा, तो प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगी, और राइट, अबंडेंस बढ़ेगी क्योंकि क्लाइंट गया नहीं आपके पास से, और हैप्पीनेस रहेगी क्योंकि आपने फाइनली उसको डिलीवर किया, उसको सर्व किया। सी समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट, आप भी मतलब काम करती हैं, आपको भी पता है कि एक प्रोसेस होता है और एक आउटकम होता है जी। तो एक नजरिया ये है कि मुझे प्रोसेस पे इम्पोर्टेंस रखना है, आउटकम तो हो जाएगा टाइप्स, फाइन, दैट्स ऑल, दैट्स वेरी गुड। बट एक नजरिया ये है कि देखो, आउटकम अल्टीमेटली इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोसेस, राइट? तो वो आपको अलाउ करेगा एम्पैथी कि आउटकम देखो, मेरा फाइनली तो मेरा आ गया, सो आई माइट एज वेल दिस लॉयर, you know, who gave me the outcome, whom I can trust, who has a prayer on an advocate's day rather than anyone else. तो ये होता है, empathy keeps your mind really open to many possibilities. और मतलब आगे भी तुम बताओगी या फिर स्पेशली लिटिगेशन में, विद फैमिली मैटर्स के लिटिगेशन में ये ब्लैक एंड व्हाइट करना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई टर्नओवर कॉन्ट्रैक्ट की तो बात है नहीं, क्लोज डोर कॉन्वर्सेशंस को एविडेंस में लाया जाता है, फिर उसके बेसिस पर डिसाइड होता है, राइट? तो ब्लैक एंड व्हाइट तो कहना बड़ा मुश्किल होता है, भाई हु वाज राइट, द हस्बैंड और द वाइफ? ट्रू। तो बहुत सारे फिर पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो फिर एक केस हारना और जीतना इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी, देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। विन विन सिचुएशंस हो सकता है, डिफीट सिचुएशंस भी हो सकता है, राइट? या बीच का भी हो सकता है। तो ये इस तरीके की पॉसिबिलिटीज, अगर आप एम्पैथी में रहोगे तो ज्यादा चांस है, वरना तो आप स्टिक ऑन रहते हो कि नहीं मुझे चाहिए, आई वांट माय विन नो मैटर व्हाट। So like this is the very first time that I am meeting a lawyer who talks about talks about love, gratitude, empathy, because the picture that we have of lawyers is wearing that black coat and white shirt inside, and they are shouting at the top of their voice in the court, and they are just अपने ही client को बचाने में लगे हुए हैं, whether the client is a victim or not, or a culprit or not.
बट वो उसी की साइड ले रहे होते हैं। वहां पे कहीं पे भी, कहीं से कहीं तक भी उनकी कॉन्वर्सेशन में ना तो ग्रेटिट्यूड दिखता है, ना एम्पैथी दिखती है, ना टॉकिंग अबाउट लव। देयर इज नो लव एट ऑल। इट सीम्स लाइक एज इफ दे आर जस्ट देयर टू For save their their clients. clients. To save their clients out of a situation and take their money. That is the Hmm. only thing, and that is the only, the superficial picture of a lawyer is there in our mind. That is the only picture that we have of a lawyer. और बचपन से मूवीज में भी दिखाते ही हैं, उसी तरीके से ही दिखाते हैं। But this is the very first time that we are facing a lawyer who talks about love, who talks about making things beautiful, who talks about gratitude, who talks about spreading love, happiness, and prosperity. So how this shift is happening and how this shift helps you in your cases as a lawyer. हाँ, इन बिटवीन आई वुड लाइक टू टेल कि मैंने जब ये किताब लिखनी शुरू की, राइजिंग इन लव विद योर इन लॉज, तो मैंने क्यों लिखी? क्योंकि मेरा काफी अच्छा रिलेशनशिप है। आई एम अ पैम्पर्ड प्रिंसेस ऑफ माय हाउस, एज आई से। Wow, lovely. तो लेकिन जब मैं क्लाइंट से मिलती थी और बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस में मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हस्बैंड से शिकायत होती है और सारा दोष आरोपण टाइप्स होता है इन लॉज पे। तो उसके बाद मैंने इसको कोड को डिसाइफर किया और कंसल्टेशन तो करती तब मैं, क्योंकि 66% ऑफ फैमिली केसेस में मैंने देखा कि इन लॉज का कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा था, राइट? तब मैंने इस कोड को डिसाइफर किया। तो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं लॉयर ना होती, अगर मैं ये कोड प्रैक्टिस भी कर रही होती, तो भी शायद मैं किताब नहीं लिखती या इतना इस लेवल पर कंसल्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगा कि ये कोड है और ये अगर कोड मिल जाए तो बहुत 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 सारे केसेस बच सकते हैं कोर्ट में जाने से। तभी मैंने ये किताब लिखना शुरू किया। तो जस्ट टू टेल यू दैट प्रैक्टिसिंग, जैसे कि आपने प्रेयर में देखा कि हम जब धर्म से हटे तो हमें उसको, थोड़ा सा भी धर्म से हटे तो हम उस पर अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट विनिंग अ केस। Right, absolutely. एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। आई टेल माई क्लाइंट्स, स्पेशली फैमिली लॉ क्लाइंट्स, कि आप अर्जुन बनो। आपने केस फाइल कर दिया, अब आप छोड़ दो। ये कॉन्स्टेंटली उसको गालियां मत देती रहो कि ऐसे किया वैसे। डोंट कीप रिमेम्बरिंग ऑल दोज बैड डेज। हुआ था, आपने फाइल कर दिया, नो लेट इट बी। अर्जुन की तरह रहो। जैसे गीता में ज्ञानी कि आप अटैच्ड, मतलब डिटैच्ड रहो चीजों से। अब आपने डाल दिया, अब ये इट विल टेक इट्स शेप, बट आप ये जो 3 साल 4 साल लगेंगे, अब आप गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, मेंटल पीस में रहो। एंड आई ऑल्सो टेल देम दैट दिस विल हेल्प योर केस। आई ऑल्सो टेल देम दैट because having studied so much about gratitude, about spiritualism, and practiced it, I sincerely feel and I have experienced that it matters a lot. Being positive about yourself, about the other person, forgiving the other person, being grateful. फॉर एग्जाम्पल, जब कस्टडी के बैटल्स होते हैं कोर्ट रूम में, फैमिली कोर्ट्स में, तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चे से तुमको मिलने नहीं दे रहा, उसकी शिकायत है, बट बच्चा अकेले तो आया नहीं। तो इतना तो ग्रेटिट्यूड रखो उस हस्बैंड या वाइफ के लिए कि तुम उससे बात कर सको, या हस्बैंड अगर वाइफ नहीं कमा रही है तो तुम उसको खुद से दो ना पैसे। व्हाई हैज शी बीन टू बी ड्रैग्ड टू द कोर्ट? फिर बहुत सारे केसेस में होता है कि नहीं, मैं बच्चे का तो दे दूंगा, इसके लिए नहीं दूंगा। अरे बच्चा अकेला आ गया क्या? इतना तो ग्रेटिट्यूड रखो। राइट। एंड देन यू नो, हमारे जब आते हैं तब तो वैसे ही परेशान होते हैं क्लाइंट्स, फिर मेरी बातें सुन के कॉन्स्टेंटली काउंसलिंग के बाद, और फिर सर्कमस्टांसेस भी बदलती हैं, राइट? जब आप 2-3 साल लगा देते हो और जब आप देख रहे हो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन पीपल स्टार्ट टू थिंक अबाउट सेटलमेंट। जो सेटलमेंट की बात हम उनको प्री फाइलिंग ऑफ द केस भी बताते हैं, दैट आल्सो समटाइम्स दे डोंट एग्री। लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनकी में जो माइंडसेट होती है वो भी बदलती है आफ्टर इंटरेक्टिंग विथ मी, और उनकी सर्कमस्टांसेस भी बदल जाती हैं, तो फिर वो सेटल करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि कम से कम एक केस जो शायद 10 साल 15 साल चलता, वो शायद अब वो खत्म भी हो गया, और लोग अपने अपने, ये मैटर नहीं करता है कि आप
अब शादी हो गई है तो आपको निभाना ही है, अगर नहीं बन रहा है इट्स ओके, बट पार्ट एट अ गुड नोट, दैट्स ऑल. Right, right. एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी वी मस्ट ऑल सपोर्ट दिस ऑल्सो. अब तो खैर बहुत कम हो गया है स्टिग्मा, फिर भी है. तो एज अ जी. सोसाइटी मस्ट सपोर्ट दिस कि भाई हो गया, इट्स ओके. इट्स जस्ट लाइक कि थिंग्स डिडंट वर्क आउट, दो पजल थे, डिडंट वर्क आउट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. You rightly said that in 66% of the cases, सास का या ससुर का ये जो इन-लॉज होते हैं, उनका नाम जरूर आता है हस्बैंड वाइफ की और लड़ाई. आकांक्षा, इनकी जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है. जो हम्म. फाइनली जो ये केसेस टर्न आउट, क्योंकि वो सारे झूठे फैब्रिकेटेड होते हैं. राइट, वो अपने माइंड में ही बनाए होते हैं. दे आर नॉट श्योर अबाउट एंड दे थिंक शायद ऐसा उन्होंने बोला होगा और ऐसा हुआ होगा और No, 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 करने लग no. जाती है. Sometimes they just have the problem with the husband, but they want to implicate the family because that will put pressure. ये हो Right. गया ना, तभी तो Okay. कन्विक्शन रेट इतनी पुअर है. यस, अगर okay. हस्बैंड के साथ था तो आप प्रेशर डालने के लिए सीनियर सिटीजन्स को भी डाल दे, तो फिर वहां से वो शुरू होता है. इट इज माइंड बॉगलिंग इन फैक्ट. Right. जब लिटिगेंट्स आते हैं ना कि ऐसा हो गया है, अब क्या होगा, घर छोड़कर चली गई है, हम पर केस हो जाएगा, कहाँ करे, किस पुलिस में, हमारे यहाँ होगा कि वहां होगा, हम तो यहाँ दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वहां नहीं दे सकते हैं. तो एक्चुअली यू फील वेरी स्कैर्ड बिकॉज आई नो द सिस्टम हाउ इट वर्क्स. तो फिर उनको काफी समझाना पड़ता है, फिर उनको काफी तैयारी करानी पड़ती है, इवन एट अ प्री FIR स्टेज. Right. But in majority of the cases, the bride, the newly wed, or you can say जो घर में पत्नियां होती हैं, वो अपना एक न्यूक्लियर फैमिली चाहती हैं कि हस्बैंड एंड बच्चे. they don't want to live with the in-laws. और उस केस में they tend to get into some arguments or probably कि मैं if we won't shift then I'll be taking divorce and all those things. ये सब चीजें होती हैं. In situations में how do you manage, because there is no sense of gratitude with the in-laws and they don't want to live at all. They want their own family. कि उनका अलग family था. Now मेरा family is my husband and my bachas. These are my I would family. like to question all those brides जी. कि would you want your bhabhi to take care of your mother or not? हाँ, that तो they want. That तो they definitely want. But for So them. that there lies the answer. अब क्या होता है, आप ये भी देखेंगे कि क्या होता है कि अगर you have not been very accommodative in your in-laws house, Right. then you will find that even your sister-in-law bhabhi will not be very accommodative with you also. Right. Okay. और अगर आप इसको लॉ ऑफ कर्मा देखेंगे तो जैसे को तैसा बोला जाता है, बट Right. अगर आप इसको एक एक्सपीरियंशियल लेवल पर देखोगे तो ये ऐसा है कि जब आपने एडजस्ट करना उस, क्योंकि इन-लॉ तो इन-लॉ होता है, वो चाहे भाभी हो या चाहे ननद हो, राइट. तो जब आपने इन-लॉज के ननद के साथ एडजस्ट करना नहीं सीखा, अकोमोडेट, आई यूज अ वेरी पॉजिटिव कॉनोटेशन इवन इन माय बुक, अकोमोडेट. जब आपने अकोमोडेशन वहां करना नहीं सीखा, राइट, तो आप जब आपकी जब भाभी आएंगी तो भी आपने वो सीखा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे उनके साथ अकोमोडेट? राइट. क्योंकि हुआ ये कि आप मुझे फॉलो करती हैं, आपने पहले भी सुना होगा, डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू का सारा मामला है. और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट है, सबसे बढ़िया है. और मम्मी ने मुझे पाला है तो मदर के साथ तो आपकी मैच करेगी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. आपकी मदर इन लॉ के साथ मैच नहीं की और आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ भी मैच नहीं की. और आपने जब आप मैरिज हुई थी आपने सीखा नहीं कि मुझे इन लॉज के साथ अपना मुझे कैसे ये ट्रीट करना है, दैट इट इज ओनली अ पॉइंट ऑफ व्यू. हम लोग तो पूरी इमोशनल रैपिंग में ट्रैपिंग में चले जाते हैं, ये हुआ वो हुआ. तो अगर आपके पास, तो इट्स सो आई थिंक स्पेशली इफ वी हैव अ ब्रदर, एक बात कह रही हूँ मैं, if we have a brother then definitely we must take it कि अरे this is an assignment that I must learn. Right, beautiful. That's amazing, right. So that जब आपकी भाभी आएगी 5 साल 7 साल बाद whatever, तो आप completely in control रहोगे अपने emotions की, अपनी accommodations के. Right. और आप देखो ऐसे ये भी कहते हैं कि उसके अपनी सिस्टर भाभी के साथ आपने बहुत कर लिया, मतलब, और अपनी ननद के साथ नहीं किया, वो बायस से होता है.
मगर अगर आप ग्रैटिट्यूड से इधर करेंगे ना तो वो बायस से भी नहीं होगा. इट विल टेक केयर ऑफ सो मेनी ईगो हैसल्स. बिल्कुल तो बिल्कुल. मेरी बुक का भी जो बुक का आई वाज जस्ट रीडिंग टुडे ओनली कि जब मैंने लिखा था उसी वक्त में मेरी बुक एक सेल्फ हेल्प है कि इंस्टेंटली हेल्प अदर्स बुक है. ओके. तो Right. मतलब क्योंकि इतना क्रूशियल रिलेशनशिप है कि अगर घर में एक बंदा भी अगर ये किताब पढ़ लेगा ना और जब कुछ भी बात होगा तो वो अगर उस किताब के हिसाब से सोचेगा ना इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द होल फैमिली. मतलब मैंने वहां से इस किताब को लिखा है. मेंट फॉर एनीबडी, एनी एज, एनी रिलेशनशिप, संबंधी, समधियों, पेरेंट्स इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी. मतलब इट Right. इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट अ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बिल्कुल नहीं, सन इन लॉ. इफ इट रियली, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्रूशियल है रिलेशनशिप. एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर how compassionate you are towards yourself, that also matters a lot. If you are all compassionate, you have that compassion with you yourself, you'll be able to see that and you'll be able to find that in others as well, and that's how it helps in building a strong relationship. ज्यादातर केसेस में भी रोज आए दिन एक खबर सुनने को आती है कि वहां पर एक नया ओल्ड एज होम बन रहा है, यहाँ पर एक नया ओल्ड एज होम बन रहा है, वहां पे हमें चैरिटी चाहिए. एंड द पीपल over there, I got a chance to visit an old age home, and जब उन लोगों को देखा और सबके बच्चे हैं, they are well settled, they have their uh, good salary that they can earn a livelihood for them as well as their parents. But even then, the parents are there living at that place, and to my utmost surprise, when I asked about are they happy now, leaving you all alone, are they happy now? No, they are on the verge of divorce. That is what I hear from them. So somehow, even if you are blaming your in-laws, even if you are talking about that because of my in-laws, we are getting separated because they used to taunt me, they used to do that and this and whatever it is, even if they are not there. So आप तो लड़ लड़ के ही मर जाएंगे. So you are let us taking our conversation to the next level, Akansha. जी. When I wrote this book, even I had thought the same. कि मेरे को लगता था कि हम कुछ ओल्ड एज होम्स भी बनने से शायद रोक देंगे. मैं एक बात कह रही हूँ आपको. बट माई जर्नी फॉर द पास्ट 1.5 years, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और एम्पैथी को भी प्रैक्टिस किया और पढ़ा और देखा, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की भी. जनरली क्या होता है कि हम लोग वी ट्रीट that children have to do something, we treat them like that. वो बड़े हो गए फिर भी they have to do certain things. That's how parents teach. क्योंकि उनका अपना एक बैगेज होता है. तो 50 साल 60 साल आपने अकोमोडेट किया हुआ होता है, मेहनत मशक्कत की हुई होती है, सोसाइटी की कितनी सारी बातें सुनी होती है बच्चे की ग्रूमिंग में कि नहीं करोगी तो क्या होगा. यू अंडरस्टैंड. तो वो सब उनके साथ बैगेज होता है. फिर वो 60-65 की उम्र तक दे वांट कि थोड़ा सा बच्चा सेटल कर गया, अब शादी हो गई, थोड़ा आराम करे, थोड़ा उनको भी थोड़ी सी एक इंडिपेंडेंस चाहिए होती है. और आई थिंक I meet many elderly women also, who complain. Yeah, I should say, who put their point of view, to put it on a positive note. To them, I only say that always understand that when your child was born, you didn't have so many expectations from him, and he was just so happy. फिर धीरे धीरे तो इतना सारा ईगो आपने उस पर डाल दिया, पढ़ो, नौकरी करो, नहीं करोगे, शादी कैसे हो गई, अच्छा प्रोफाइल्स अच्छे नहीं आ रहे तो भी सुनाया जाता है कि पता नहीं कौन इससे शादी करेगी. गर्ल्स का होता है, बॉयज का भी होता है. तो वो सारा कुछ बैगेज हो रहा है. तो उस एनवायरमेंट में आप कहाँ तक सोच रहे हो कि वो उस लेवल पर अब आपको समझ पाएगा या आपका स्ट्रेस ले पाएगा. एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरी पॉइंट हो गई कि आई हैव हर्ड मेनी दैट दे से कि भाई करना तो है ही उसको, चाहे जैसे भी करे, 70 65 80 साल की उम्र में. तो जब आपको 60 में बोला था
कि थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, वो थोड़ा काम कर लेगी, थोड़ा एड ऑन इनकम होगा. ओके, देन वेयर वर यू? Right. तो मतलब थोड़ा सा, मतलब क्यों, ग्रैटिट्यूड ऐसी एक चीज है जो कि आपको अपनी तो रखनी ही रखनी है. और अगर कोई भी रिलेशनशिप किसी का भी मिसिंग हो रहा है, वेदर इट इज मनी, whether it is relationship with parents, with in-laws, with children, तो आपको instead of blaming the other person, because blame is ego, switch to Right. gratitude कि मेरी gratitude में क्या missing है, that's it, and it will alter. Are you understanding my point? So in this case, like as you said, blaming is ego. In this case, what is the difference between feedback and blaming? Like blaming is you have done this, you should not have done this. Yeah, this is the blame. And when I'm giving feedback because I want other person to improve, I didn't like a certain situation that happened, and I was not happy about that situation, but I don't want to make things worse. So I approach that person and I want to give a feedback. But how does that person take that feedback? See, He or it she can depends understand कि, that or as a feedback. So what is it that minute difference? was, yes, that minute difference is gratitude. All right. अगर आप ब्लेम से, अगर आप ईगो से बोल रहे हो तो वो ब्लेम होगा. मगर आप अगर ग्रैटिट्यूड से बोलोगे कि देखो तुमने 5 काम में अच्छे किए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कैन यू जस्ट डू मेक दिस बिट बेटर, बिकॉज इट विल एनहांस यू, इट विल एड टू योर प्रोफाइल, दैट इज फीडबैक. तो किसी भी फीडबैक को अगर आप ग्रैटिट्यूड में डिप करके दोगे ना, तो वो ब्लेम नहीं होगा, दैट विल बी अ फीडबैक. Okay, sandwich. आगे जाएंगे. Good, and the bad one in between with 2 layers of good. No. फिर वो not just feedback is not bad as we say. Akansha, it is, you have asked a wonderful question. Right. हमें ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि अगर सामने वाले को बुरा लगा तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जाने, मैंने तो सही बोला था. हाँ, हमने अपना पल्ला झाड़ दिया. Right. नहीं, मैंने सही बोला था, आई एम राइट अबाउट इट. अब उसको बुरा लगा तो मैं क्या करूं, मैंने तो उसके भले के लिए बोला, राइट? द पॉइंट इज कि अगर आपने उसके भले के लिए बोला, मतलब भले के लिए बोला, बट उसके बैकग्राउंड में आपके क्या था, क्या रॉन्ग मेकिंग था, क्या इवैल्यूएशन था, या ग्रैटिट्यूड था? क्या आप कमिटेड थे उसको फॉरवर्ड करने के लिए, या आप उसको याद दिला रहे थे कि उसमें एक कमी है? राइट. और इसके लिए जो मेरा बुक का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो जो सेल्फ लव है, जो आप कंपैशन की बात कर रही है, तो अगर मैं अपनी जब मेरे में पॉजिटिव्स हैं और मेरी लिमिटेशंस हैं, वैसे ही सामने वाले में लिमिटेशंस हो और ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं उसकी लिमिटेशंस को हमेशा, मतलब मैं खुद में जो प्रेजेंट हूँ कि मेरे में लिमिटेशंस है, वैसे ही मैं उसके लिए भी प्रेजेंट हूँ कि लिमिटेशंस है, बट आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, एंड आई एम विथ यू. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप देखो, फ्रेंड्स फीडबैक देते हैं, बट पेरेंट्स, स्पाउसेस, वो ब्लेम करते हैं. फ्रेंड्स फीडबैक देते हैं. तो थोड़ी सी दोस्ती की गुंजाइश हर रिश्ते में रखनी चाहिए, ना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और आभार रखना चाहिए. Right. So it is more like how you say it. Is it with gratitude? Is it just because when you're giving a feedback, it is majorly people don't have that gratitude. They want to figure out something that needs improvement, and no matter how they say it, they want to say it. और कई बार क्या होता है, वो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है. I don't want to offend you, लेकिन मुझे ना ये वाला चीज कुछ अच्छा नहीं लगा था. मतलब it was good, but this way अगर आप इसको इस तरीके से करते तो ज्यादा बेटर होता. वो चीज ऐड ऑन जाती है, और दैट फिर हम कहते हैं कि सामने वाले ने कैसे लिया, वो उनके ऊपर, हमने बड़ा पोलाइटली बोला था. इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से बोल रहे हो. आर यू पॉइंटिंग आउट फिंगर्स एट देम, और आर यू फॉरवर्डिंग देम, बढ़े चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. Right. Wonderful. That's wonderful. Thank you, Sadia. Thank you for joining us. People, we are going towards a very interesting journey of Savita Sinha ji, and I'm really enjoying it. So if you have any questions, because she's the only author of Rising in Love with Your In-Laws,
an amazing book, self-help book, through which you can actually enhance your relationships and make your relationships strong with your in-laws. So, if you have any questions, do let us know, and I'll be addressing those questions to Savita Sinha for you all, and she'll be helping you with those questions. So, the next question that we have for you is, since you have written a book, and this is the very first book that says about rising in love with your in-laws. So, how to rise in love with your in-laws? Definitely, when we are going to buy that book and read that book, then only we are going to understand that how the rise happens. But we want to know more about, like, since you said that you are a princess at your in-laws' house, but when that transition happened from your parents' Never place to, happened with me. okay, it happened. Okay, we want to know more about this then. Yeah, I was pampered since the beginning. Why? Because I was so grateful to my in-laws for giving me such a lovely husband. All right. Always, always, always grateful. I think that is a done deal kind. मतलब उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब मेरे लिए top up है. I Wow. was so much in awe of my husband. I am. And it is, I mean, मैं clear थी कि भाई कोई बच्चा ऐसे तो नहीं बनता, इतना अच्छा, इतना loving, इतना caring ना. Right. There is, apart from the material things of education, and you have prayers, you have blessings, you have grooming, you have your love that you have poured into that child so that he can share it to the world. Okay, so I was so much in awe since I got engaged, or even before engagement, even in courtship period. I was like so much in gratitude for my in-laws that whatever happened, well, nothing happened. So it was absolutely a smooth transition. Matlab, my life has continued to be a fairy tale as far as being a daughter is concerned. I was absolutely grateful, absolutely, even till date. I mean, और अब तो खैर मैं बहुत ज्यादा हूँ. जब मैं आई थी तब तो मेरे पास एक रीजन ये था, अगर तुम देखो. फिर चूंकि आई वॉज इन ग्रेटिट्यूड, सो पीपल से कि भाई वो है ही अच्छी. डेफिनेटली, no doubt about it. My in-laws are really, really extraordinary people. Of course, I wouldn't have written this book also had I not have such a great relationship with them. And it wouldn't have been possible without them. Magar, the point is ki, how do I conduct myself? How do I take responsibility about it? क्योंकि अगर मैंने ये सोचा कि भाई वो थे ऐसे इसलिए हो गया, तब तो मेरे पास पावर रही नहीं ना कि मैं अगर मान लो कुछ कल होता है तो मैं उसको कुछ मॉडिफाई कर सकूं. बट चूंकि मैंने कोड क्रैक कर लिया तो मैंने इसको अप्लाई किया, कॉन्स्टेंटली अप्लाई किया. और I have risen in love continuously. एंड क्योंकि उसके बाद मैंने क्लाइंट्स को देखा बहुत extraordinarily. मतलब a friend of mine, she was going through a bad phase. She had issues. So I said, whatever issues you have, you have to be grateful to your in-laws just for your husband. Well, she loved her husband a lot, so she started practicing gratitude. तो जो भी जितने भी issues थे उसके husband और उसमें उन्हीं के थे, वो सारे solve हो गए happily, and I'm so happy to share this. Wow, lovely. It means a lot. It means a lot when you have a client whom you've consulted, but when you have your own friend, it means a lot. Absolutely. And we are inspired from this story. Like, so if I say this book, Rising in Love with Your In-Laws, this is a kind of amalgamation of your own story along with the people, your clients who were in bad relationships. So you try to see, you try to figure out that how a bad relationship can be turned into a good one. I would say the grateful one, and then you incorporated those postulates in the book for people to read and get that self-help. Yes. So just to tell you, I got a compliment also that it's written in Robin Sharma style. Oh wow, lovely. Yes. I have made it in a story. Yes, the Mancu Solis Ferrari. I have made it in a story write format because the topic is so sensitive
as I am, मतलब सालों में पहली हूँ मैं author इस topic पे. I wanted Yes. it to be a very, very interesting read. So I have written in a story-like format. Examples are very real-life examples and real life solutions from my testimonials. So the only thing is which is with any self help book, you know, आप सिर्फ पढ़कर उसको भूल जाएंगे तो काम नहीं करेगा ना, आपको प्रैक्टिस करने होंगे वो 5-6 प्रिंसिपल्स को. आई थिंक तो इफ यू पिक अप दैट बुक और आपके राइजिंग इन लव होने में सिर्फ एक ही बैरियर है, वो है आपका प्रिंसिपल को अप्लाई करना. दैट्स इट. Right. True. If you are eager to strengthen your relationship, then definitely you will be applying the principles for sure. So Yes. this book is in English or is it available in Hindi as well? अभी तो इंग्लिश में है, हिंदी पर काम चल रहा है, बट अभी तो इंग्लिश में है. Why I'm asking this, because majority of the cases, like as a trainer, when I come across the issues, majority of the cases, the problem is with the homemakers, the women who are there. No. Where are you? Okay. No. Many cases are with working women. Okay. There are so much of issues regarding adjustment with working women because you are expected to do both tasks. And women, you know, they are groomed also like that only. अगर आप हमारे तक जनरेशन देखो तो ये पढ़ो लिखो, get a job, settle down with a marriage and बच्चा के बाद तो taken for granted है कि आपको career break types लेना ही पड़ेगा. So nobody is taught कि देखो तुम अगर वर्क करोगी और घर का भी देखोगी तो तुमको ये इश्यूज आएंगे, तुमको उसको संभालना होगा. Nobody is taught कि अगर तुम इन-लॉज से बना के रखोगी तो वो तुमको हेल्प करेंगे तुम्हारे लिए, not from a selfish point of view but you know just to progress you in life, progress in you in life. Nobody teaches that. और फिर वर्किंग वुमेन में फिर वो आपको एक्सपेक्टेशन और खुद के भी वो एक्सपेक्टेशन थी, सेल्फ लव की, कंपैशन की कमी होती है, खुद में ही होती है कि नहीं हम मल्टीटास्किंग हम सब कर लेंगे, फिर फेल करने लगते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर फ्रस्ट्रेशन में पूरा बैगेज होता है. यू डिडंट नो दिस, यू डिडंट डू दैट, यू शुड हैव लर्नड इट. एंड फिर कंपैरिजन होता है जो कि मैंने अपने बुक में बहुत बड़ा बदल है. तो कंपैरिजन होता है कि यू डोंट कुक लाइक माय मॉम. अरे भाई सालों से उसने किया ही नहीं है तो या यू विल रीड दीज मैसेजेस, यू नो दैट आई एम अ फादर्स प्रिंसेस. अरे भाई आप फादर के ही प्रिंसेस हो सकते हो. For the husband, you have to operate like a queen, and a queen does more than a princess. आपको कभी संभालना पड़ेगा, कभी सरेंडर करना पड़ेगा. There is more to it. You cannot compare. तो ज्यादातर होता है कि लड़कियां फादर से कंपेयर करती हैं और लड़के मदर से कंपेयर करते हैं. The reason I was saying this, Savita ji, because the homemakers, when they are at home, so they don't have any other thing to divert their mind towards. A working lady, she goes office. I want to stop you here. आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है. जो होम मेकर्स होती हैं उनके असाइनमेंट्स जो होते हैं घर के, जी. उसमें उनको कितनी एम्पावरमेंट घर वाले दे पाते हैं, आप ये बताइए. ज्यादातर तो डिसएम्पावर करते हैं कि तुम काम नहीं कर रही हो, तुम कुछ कमा नहीं रही हो, उसको देखो वो घर भी करती है. सो आई थिंक that is a very crucial issue. When you are a homemaker and you are expected कि भाई तुम confident हो, और confident तुम कब होगी जब तुम बाहर कमा के पैसे लाओगी, तब तुम confident होगी, तब मैं भी क्लैप करूंगा. मगर आपको कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए बाहर का काम नहीं, घर में जो वो करिए आप उसमें भी अगर आप अप्रिशिएट करोगे, इन लॉज, हस्बैंड, चिल्ड्रन और एज नेबर्स और एज आंट्स इन लॉ, तो भी उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा. और एक कॉन्फिडेंट हैप्पी लेडी विल गिव अ हैप्पी होम. 24 घंटे वो रहती है, पूजा पाठ फास्टिंग वो करती है, आप तो मटेरियल चीजों में फंसे रहते हो. इतना क्रूशियल. So just I wanted to just stop here. Being a housewife is a 24/7 job, that too without a salary and without a credit.
at times. Right. So it is very important. तो but you were making some point कि तुम्हारी होममेकर्स की कोई point थी. हाँ, तो विमेन का वर्किंग विमेन के साथ बहुत है, क्योंकि उनको तो कहा जाता है कि तुम कमाती हो तो तुम्हारा ईगो इतना हाई है. खत्म. So there's आकांक्षा फिल्म को मेंटेनेंस भी नहीं मिलता. फिर और इश्यूज, ब्लैक व्हाइट का ये मतलब कुछ डिस्क्लोज इनकम, कुछ अनडिस्क्लोज इनकम का भी होता है. अगर आप हस्बैंड की सैलरी लेंगे तो उसकी स्लिप होगी, आईटीआर होगी, और बहुत सारे अमाउंट्स तो विदाउट आईटीआर होते हैं. राइट. तो फिर वहां पे भी विमेन को परेशानी होती है. तो मैं ये बात इसलिए उठा रही हूँ कि अगर आप एक व्हेन यू गॉट मैरिड एंड यू कैन, अगर आप अपने इन-लॉ से बना के रखते हो तो कल को क्राइसिस होगी ना तो वो आपको सपोर्ट करेंगे. ये भी तो बात है. आप जब क्राइसिस में चले जाते हो, पहले तो आपको था नहीं वैल्यू या आपको कोड था नहीं, फिर आप क्राइसिस में चले गए, अब आप सोचते हो, अब आप और ब्लेम उन्हीं को करते हो कि कैसा सिखाया नहीं, बताया नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं. तो अब आप नहीं, आपको क्या राइट है जब पहले आपने उनको नहीं किया? डू यू हैव द राइट आल्सो नाउ टू क्वेश्चन देम? जियो अपनी जिंदगी. सो मेनी केसेस कम लाइक दैट. पेरेंट्स डिसओन देयर चिल्ड्रन सो दैट हमें बहू को ना मेंटेनेंस देना पड़े. पता है? अच्छा, ये ऐसा भी होता है. This is the first time, right? That's a little interesting, and it has another aspect to the situation. जहाँ पे मेंटेनेंस की बात हो रही है रिलेशनशिप्स में डिवोर्स के बाद, और कि होम मेकर्स को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज जो कंडीशनिंग है वो इसी तरीके की रही है. एज यू सेड, after a particular time, even if you have a certain degree, you have to maintain your house, you have to see your house and the upbringing of your kids. आकांक्षा, मगर अब जो कंडीशनिंग जो हो गई, अब हमारी कंडीशनिंग हमारे हाथ है. सेल्फ हेल्प बुक्स हैं आपके पास, यूट्यूब वीडियोस है, GWC का प्लेटफॉर्म है, विमेन सॉलिडारिटी है, फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, हम एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं. थैंक यू फॉर योर इनफाइनाइट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड. राइट. तो अब आप ग्रूमिंग हो चुकी उसके विक्टिम मत बनो. अपने हाथ में रेंज लो, प्रैक्टिस कंपैशन, प्रैक्टिस. आप जो दोगे वो आपको मिलेगा. आपको कंपैशन चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप दूसरों को कॉन्फिडेंस दो, पॉजिटिवली कॉन्फिडेंस दो. This thing women has to learn that stop this blame game now कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं करने दिया या हस्बैंड ने नहीं करने दिया. It was you. पेन आपके हाथ में है, स्टोरी आपको लिखनी है. आप क्या लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, that depends on you. Absolutely. So, right, absolutely. So the another question that we have, since it's going to be 1 hour now, and it was so involving interaction. There are a lot of questions that are arising in my mind, but this one question that I will definitely ask for you: what is women empowerment? Women empowerment for me is empowering the world. Right. Without judgment, without evaluating, standing for the world, standing for yourself. मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने एम्पावरमेंट में आप दूसरों पे ट्रैम्पल कर दोगे. आपको अपने and it is about partnership, collaboration. It is about that. जैसे कि जब हम लोग जब कॉलेज में थे तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट ये सब होता था 33% रिजर्वेशन पर विमेन के MP पार्लियामेंट में. तो था वहां पे तो फेमिनिज्म का था जमाना, और इतना ज्यादा यंग थे तो प्रोटेस्ट में जाते थे. और फिर बाद में समझ में आई कि फिलहाल जो स्थिति है वो 33% रिजर्वेशन भी मेन ही पास करेंगे. ओके. तो उनको लड़के इतना क्या फायदा, अगेंस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट होके क्या फायदा. राइट. वी माइट एज वेल बी स्मार्ट, बी कंपैशनेट, और अपनी हमें इन्हीं परिस्थितियों में हमें अपनी राह ढूंढनी और मंजिल तक पहुंचनी है. अनडाउटेडली. So it's up to us whether you play the victim card or you be the queen of your story. So this is completely up to you. So
we have so many people and they all agree with what you are saying. Monica ji says it's all the intent that matters. This was the comment when we were talking about the in-laws relationship. Sadia Khan is all in awe of this conversation and Thank you uh, so much. she agrees with what you said. Pushpa Sahu loves this interaction. And then we had Shanti Paswan ji. Oh, great. So true. Great. Bajaj says relevant aspects discussed. Kanchan says I agree to every point, and this is really amazing because this is a complete different aspect to a story, which we see as girls, women, because there's a different aspect altogether. It's up to us how It's up we. to Akansha. Let me stop you here. The book is for anyone. Gender neutral, age neutral, relationship neutral. Right. So this applies to everybody. The theory that you need to be hero of your own life. Whether you're a son, son-in-law, daughter, daughter-in-law, father, father-in-law, brother, brother-in-law, anyone, take control of your life. Be grateful. Accept yourself. Understand कि आपके limitations है, सामने वाले की भी limitations है. What can we do about it and move ahead? Stop this blame game. That's it. Absolutely. Beautiful. Absolutely. True. ये बुक हर किसी के लिए है क्योंकि हर कोई, अगर आप एक फादर इन, मैंने बुक में एग्जाम्पल भी दिया है, एक सन इन लॉ का दिया है. उस सन इन लॉ ने थैंक किया है कि मतलब मेरे आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे इन लॉज ने मुझे कितना सपोर्ट किया. वो करते शुरू से थे बट इसको रियलाइजेशन नहीं थी क्योंकि इन लॉज वर आल्सो टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड कि भाई हमने शादी किया है, तुम्हें करना ही है. राइट. जहां टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ना, वहां ग्रेटिट्यूड नहीं होता. राइट. ट्रू. और मैंने फिर ये संबंधियों में भी दिया है क्योंकि बहुत सारे केसेस में बोला जाता है कि भाई बेटे को ये नहीं सिखाया. आपको घर में सुना होगा. तो is for everybody. We have to take charge of our lives instead of blaming anybody. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने टच किया है बुक में, अगर किसी को भी एडजस्टमेंट इश्यूज हैं स्पेशली विद इन लॉज, उसको भी मैंने टच किया अपने बुक में. और उस चैप्टर का नाम है अकोमोडेशन आउट ऑफ विथ ग्रैटिट्यूड एज अ कॉन्टेक्स्ट. एडजस्टमेंट में थोड़ा सा होता है कि आप मुझे करना है, आपने सुना होगा बहुत फ्रीक्वेंट, इससे बड़ा एडजस्ट करना पड़ा उसको. इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशन, राइट. तो मैंने इसको एक तो अकोमोडेशन दिया प्लस ग्रैटिट्यूड. भाई आपके इन-लॉज ने भी किसी के साथ एडजस्ट किया था, यू कैन बी थैंकफुल फॉर दैट. यू वुड वांट योर हस्बैंड टू अकोमोडेट विद योर पेरेंट्स. ये एग्जांपल बहुत कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो जो मदर इन लॉज अपनी डॉटर इन लॉज को देती, तुम्हारी लाइफ तो इजी है, हमारे टाइम पे तो ये था. It was very far way difficult, but you are leading a very. Akansha, this is a very, ये तो बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है. मदर इन लॉ वाले फादर्स भी कहते हैं हमें ये किया वो किया. एक वीडियो भी आता था कि हम सैटारिकल वीडियो है ऑल दिस फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कि तुमको भी सुनने को कि हम तो नदी पार करके पढ़ने जाते थे, all that stuff, right? So what happens is that तो आप ये देखो ना आकांक्षा, किसी को भी कितनी कंपैशनेट ग्रूमिंग मिलती है यार. Everybody has got the same ego filled grooming. Right. तो जब उसका इनपुट ईगो फील्ड था, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रेटिट्यूड आउटपुट का, राइट? मगर जब आप आज इनपुट ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, don't you think it will be the game changer? Absolutely, indeed, very true. Right. अगर कोई घड़ा ईगो से भरा है ना, तो आप उससे नहीं ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट कर सकते. मगर उसको आज आपको जानकारी है तो आप भरो ना अपना ग्रेटिट्यूड, खत्म. और कोई भी, सब में होता है ये. बॉसेस बोलते हैं कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, हमारे पास तो सिस्टम नहीं था, इतने पढ़ते थे, रात तक रहते थे. इन माय ऑफिस, आई मीन लॉ ऑफिस में बता रही हूँ आपको, फिर वो हमेशा रहेगा. बट अगर हम ये सोचेंगे कि see, I am blessed and I am thankful and I am complaining. यही तो अंतर है. आप बोल के देखो.
Very true. In fact, I think if we are in gratitude and we are in compassion with ourselves, तो ईगो ही खत्म होगी और ये जितने भी heated arguments होते हैं और debates होते हैं where people leave no mark untouched in insulting the person in front of them, even if the news channels and whatever the scenario is, it will all go away. ये तो उस पे क्या कह रहे हैं, एक्चुअली अभी तक ईगो ड्रिवन ही रहा है सब कुछ बहुत ज्यादा, इसीलिए इतना मारा मारी है दुनिया में। इफ यू सी, तो जैसे आप भी काम कर रही हैं, आपके बहुत सारे कोचेस हैं जिनको आप लाती हैं टॉक शोज में या कोलैबोरेशंस में, आपका प्लेटफॉर्म है। सो वी ऑल आर डूइंग द सेम वंडरफुल जॉब कि ये जो पूरी दुनिया है वो लव और कंपैशन से ऑपरेट करे और उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मगर पॉइंट इज कि सालों से इतना ज्यादा ईगो ड्रिवन रहा है कि समय तो लगेगा, समय देना पड़ेगा। Even if the people who are talking about love and gratitude, Savitaji, this is the first time that I'm sharing this thing. The very renowned people who talk about love Yes. and gratitude, Yes. when we connect to them, they have their set of ego Yes. when they're talking about gratitude and love. नहीं, Yeah. ईगो तो देखो आकांक्षा, यू टच्ड अ वेरी गुड टॉपिक। ईगो तो उनके भी होंगे, सुन लो बात, क्योंकि उनको भी ईगो ड्रिवन ग्रूमिंग मिला है। वहां पे उनको एनालाइज मत करो, तुम ये देखो कि डिस्पाइट देयर ईगो उनके टॉक्स ने कितने लोगों के जीवन में लाइफ लव लाया है। Absolutely, true, right. राइट, क्योंकि ऐसे भी जैसे ही तुम गई भी उनसे मिलने, इंटरव्यू भी लिया, फिर उनको इवेल्युएट करके आ गए, नो पॉइंट। राइट, बट जिस चीज के लिए हम लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं, फिर हम वही काम कर रहे हैं। सो डोंट गेट इनटू दैट, इट्स ओके। You don't know what that person has gone through to reach at that level, but even at that level he is delivering, bhai. He's bringing light in people's lives. That is much more important. Rest, everybody has a baggage, has a history, so what's big deal about it? What makes the difference is what difference have you made in others' lives. That makes the difference. Your baggage is the same, A B C D, कोई एक अल्फाबेट ही होगा, that's it. मगर आप जो डिफरेंस मेक करेंगे वो इनफाइनाइट होगा। तो मतलब डिफरेंस का पड़ना बहुत ज्यादा भारी है। Very good question. I was just thinking about it when I was coming for the talk show, about this question only, and you asked this. I don't know. Yeah, to say that we should not judge somebody or analyze somebody, it will take time as an individual, because there's a lot of conditioning, definitely, and we all are, I am learning, let's not talk about we, but yes, I am learning on that I'm part. learning. And Absolutely. we'll reach to that level in our lives, because this makes life really beautiful when you don't judge somebody, and it is just not factual, but this is very true. People, when you stop judging people, when you stop analyzing or evaluating people, life becomes beautiful, and you don't see any blame or anything that needs to be improved in another person. Feedback is something different, but it really becomes, the atmosphere becomes beautiful, and you have challenges. आकांक्षा, challenges आते हैं इस लाइफ में भी challenges हैं। जब आप लव एंड कंपैशन का लाइफ लिव करने में भी चैलेंजेस आते हैं, मगर उनका फ्लेवर अलग होता है। आप कंट्रोल में होते हैं, आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है, आप पावरफुल होते हैं, आप हीरो होते हैं। लेकिन अगर आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आप किसी भी हालत में हीरो नहीं हो सकते। अगर आपकी जीत में भी आप विक्टिम रहोगे। आप देख लीजिए, over here it is very hard. If somebody is in ego, it's very hard for that person to understand that he or she has ego. It's very difficult. Even if you are telling them that you are being egoistic right now, you are judging. That is another set of ego. So there is ego everywhere, and it will take a lot of time, and that demands huge transformation. हाँ, huge transformation और लगे हुए हैं। And it's not about my boasting, but I definitely believe that whatever should go so positive. Only positives must go from my Facebook page, no matter what. There is a lot of negatives, so there should be. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी positives दे, जैसे कि
इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इट इज नॉट अबाउट डाइवर्सिटी, इट इज जस्ट अबाउट, मतलब कोई अंतर नहीं है, इसीलिए इक्वालिटी होना चाहिए, जस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट जस्ट एज मेन एंड वीमेन, जस्ट Right. एज ह्यूमन बीइंग्स. और यहाँ पर मैं एक there's so much of you I would like to, तुमने शुरू में बोला था what made you or some what made you to be a lawyer and all, तो उसका मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगी कि मेरा एक विजन डॉक्यूमेंट है, वो मैंने अपने पेज पे रखा हुआ, विजन डॉक्यूमेंट 2023. ओके, तो उसका जो टैगलाइन है इज लाइक लॉज कैन मेक और ब्रेक एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, Right. एंड लीगल कंसल्टेंसी मस्ट कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स. ये 3 टैगलाइन है मेरा. तो ये मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है मेरी लाइफ में. क्योंकि जब आप पढ़ते हो और अपनों को गुजरते हुए देखते हो केसेस से सालों, एंड द स्ट्रेस दैट दे गो थ्रू, इट इज ह्यूज. तो ये मेरे जीवन का एक मिशन है कि कॉज लिस्ट छोटी हो कोर्ट्स की, सो दैट जो एक्चुअल केसेस जहाँ पे बहुत जरूरत है लीगल इंटरवेंशन की, वायलेंस का बहुत ज्यादा है, या जहाँ पर कि जिनको, क्योंकि कभी तो कोर्ट के पास टाइम ही नहीं होती है, 35-40 मैटर्स इन अ डे इन 6 आवर्स. हाउ डू हाउ मतलब कहाँ से वो बंदा उतने फाइल्स प्रोसेस करके सबकी बातें सुनेगा, उसको प्रोसेस करेगा? नो, आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर एज अ लॉयर, कि हम लोग सारा वक्त वी ब्लेम लॉयर्स एंड जजेस एंड सिस्टम अ लॉट, बट द पॉइंट इज व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट. क्या आपका अगर कोई केस कल आता है, आर यू रेडी टू गो फॉर अ मीडिएशन, आर यू रेडी टू गो फॉर टॉक्स, या आप सीधे फाइल करना चाहते हैं, देख लेंगे कोर्ट में? आप ये तो करो. और एक मेरी बुक का एक ये भी मकसद है कि कम से कम फैमिली लॉ के जो वो इश्यूज हैं, डिवोर्स, पार्टीशन, कस्टडी बैटल्स, वो तो कम से कम फैमिली लॉ, फैमिली कोर्ट को तो थोड़ी सी राहत मिले. फैमिली कोर्ट बनाया गया था कि एक स्पेशल कोर्ट होगा, फास्ट जस्टिस मिलेगा, उसमें भी आपको साल भर में 4 डेट लगते हैं. एक तो 4 डेट में आपको कहाँ से पॉसिबल है? 1 साल तो रिटन स्टेटमेंट में लग जाता है, 1 डेट 1 साल, 2 डेट अगर अब मिस हो गई आपकी तो. So this is one thing that I would like to, I am really committed, this is my vision that cause list छोटी होनी चाहिए और लोग मामले अपने सेटल करें. इसलिए मैं सोशो लीगल काउंसलिंग पे भी काफी ज्यादा काम करती है, अपार्ट फ्रॉम मैरिज काउंसलिंग. सोशो लीगल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ और अच्छा लगता है when people get relief. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर नहीं बात बनी तब तो कोर्ट जाना ही है, फिर वहां पे तो काम वो अलग होता है. तो फिर वहां पर जो मेरी एक, आपने ये भी सवाल पूछा था कि आप शिफ्ट कैसे करती हैं ग्रेटिट्यूड और लॉ, तो मैं वहां पर यही शिफ्ट करती हूँ कि अब ये मेरा काम है, तो मुझे अर्जुन की तरह अब ये काम करना है, डिलीवर करना है और रखना है कि भाई काम निपट जाए बस. क्योंकि हम एक लेवल तक ही कोशिश कर सकते हैं ना काउंसलिंग मीडिएशन की. यहाँ पर शांति जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं सिर्फ चाहूंगी इनका आंसर आप केवल 2 लाइनों में दें. और ये कह रही है अगर बहू पहले दिन से ही एडजस्ट ना करे तो अगेन जजमेंट है यहाँ पे. और yeah, it's a very good question because it is faced with many families. ठीक है, तो अब बहू क्यों नहीं एडजस्ट? देखिए, बहू तो है नहीं, बहू ने ना ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम उसको तो कर नहीं सकते, उसको ज्यादा बता भी नहीं सकते. ठीक है, लेट अस जस्ट डील विद कि आपका जो परिस्थिति है, आप यू आर सेइंग कि बहू नहीं एडजस्ट कर रही है, लेकिन बहू आपके बेटे की वाइफ है, राइट? आपको, आपने सपने संजा के बेटे की शादी की देखी थी, आपने सपने इतने से आप उसको लाए थे. आप बाकी बहुएं कैसे भी हो, आपको आपकी बहू वाली खुशी यही बहू देगी, दूसरे की भतीजे की वाइफ भी नहीं दे सकती आपको ये खुशी. ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स भी आपको यही देगी आपके खानदान की, राइट? तो आप उसको वो एडजस्ट उसका वो बात अलग है. आप क्या आप ग्रेटफुल हैं जस्ट फॉर दीज 2-3 फ्यू थिंग्स, नथिंग मोर देन दैट. अगर आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट भी एक एक्सपेक्टेशन है, राइट?
तो उसको भी आप अलग रखिए अभी। हाँ, Just मतलब start कि doing it. सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की इस तरीके से वो एडजस्ट होगा। तो फिर वो आपके बस में है नहीं। वो फिर देखो आकांक्षा, ग्रेटिट्यूड हमारे बस में है ना, हम लिख सकते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, डियर सो एंड सो, आई एम सो थैंकफुल टू यू, रोज 10 दिन लिख सकते हैं, फिर वो हमारा माइंड रीवायर करेगा। बट दूसरे पे कहाँ कंट्रोल है हमारा, किसी पर नहीं है। वी हैव कंट्रोल ऑन नोबडी। एब्सोल्युटली, तो आई एब्सोल्युटली। थिंक शांति जी को शायद जवाब मिला होगा, और इसके अलावा वो मुझे पर्सनली इन टच कर सकती हैं। शांति जी, और कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज आप सविता जी से कनेक्ट करिएगा। और एनी अदर? यहाँ पर just going through the comments once again. यहाँ पर मैंने सविता जी का पेज है हैक्रॉस, उसका लिंक आप सभी के साथ शेयर किया है। प्लीज गो थ्रू दैट पेज एंड लाइक द पेज एंड गो थ्रू द अमेजिंग पोस्ट that she keeps on sharing to spread positivity, because it's all about spreading positivity. It's all about spreading gratitude and be grateful for what you are. Be grateful to people who are around you. Definitely, we should be having a gratitude ambassador, probably Savita ji, who can talk Sure. more about it. And because I, as a person, I am really inspired from your posts, your talks, and I'm trying to imbibe each and every thing that you keep on spreading through your beautiful messages. Your posts are my morning mantras, which I'm trying to incorporate. So it was a wonderful interaction with you, and I tried to understand everything that you mentioned in this talk. Really inspiring journey, because every journey is full of challenges and their share of struggles. But you also must be having some challenges for sure. But I saw a lot of positivity and compassion and gratitude in your story instead of those struggles and challenges. As a woman, we face a lot of challenges and struggles, but I've seen many women talking about just the challenges and struggles. I faced this, I have faced that. But very less are there who talk about gratitude, who talk about uh, those beautiful people who made their journey easy, who talk about that positivity around them that made them. Everything is all about negativity. So it's more about spreading positivity. So let's be positive about ourselves. Let's see positivity all around and mark a footprint of positivity so that we can spread happiness, and of course gratitude and empathy are the key to happiness and prosperity, as said by Savita ji. Savita ji, it was an honor to host you today, and it was a lovely interaction with you. And definitely, we'll be doing other sessions as well with you. And ladies and gentlemen, the people who have some troubles in their relationship, I recommend this book, Rising in Love with Your In-Laws. Buy that book, go through that book. And this is completely a self-help book. There are few principles and postulates that have been written by Savita ji's experience as a lawyer and as a daughter-in-law herself. So please buy that book, read that book. The links and everything is given on the page, and also you can check out Hepros page, wherein you'll be getting the link. It's available on Amazon, Flipkart, and few other sites as well. So thank you, Savita ji, for being here and taking out your some time from your busy schedule and spreading some light to all the people over here. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you to our viewers. Thank you everyone for joining us and sharing this video, and your comments means a lot.